Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from Amal Convent Group of Schools. Students, nowadays we are studying fourth poem from the book The Flamingo. Fourth poem, as we all know, is A Thing of Beauty by John Keats. And in our last class, I have broadly described about the poet very well. You can refer. If you have not gone through the previous video, it will be better to go and understand the basics and background of the poem from the previous video. The poem A Thing of Beauty, as you all know, is an extract from Keats' poem Endymion. Endymion, a poetic romance. It is a epic poem, and from the beginning of the book first of the poem Endymion, this poem, A Thing of Beauty, has been taken. The poem Endymion is based on a Greek legend in which Endymion, a handsome young shepherd and poet who lived on Mount Latmus, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out, and so wandered away through the forest and down under the sea. This is what has been the basis of the poem, the Endymion. If we talk about the poem that we have to read over here, A Thing of Beauty, this poem describes that a beautiful object provides joy forever. This is the basic and very beginning line. A thing of beauty is a joy forever. मीन्ट जितनी भी सुंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें इटर्नल जॉय देती हैं, इमॉर्टल जॉय देती हैं. Its beauty increases and it never passes into nothingness. जो जितनी भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो ब्यूटी है उनकी वो केवल और केवल इंक्रीज करती है, वो कभी कम नहीं होती, नथिंगनेस में कभी भी नहीं पहुंचती. ये एक ब्यूटीफुल ड्रीम की तरह हमारे दिमाग में हर समय बनी रहती है. हम जब कभी भी हमें वो सारी बातें याद आती हैं, हम जो ब्यूटी का इंचेंटमेंट है, जो ब्यूटी का इम्प्रेशन है, जो उस ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट से प्रोवाइड किया गया हैप्पीनेस है, उसको याद करते हैं और उसका जो ब्यूटी है वो इंक्रीज करता रहता है. इट इंक्रीजेस डे बाई डे. इट नेवर कम्स टू नथिंगनेस. कभी भी खत्म नहीं होता. फर्दर वी हैव रेड इन द पोएम कि it will keep a pleasant shady place quiet for us. It will provide sleep full of sweet dreams and health and quiet
ब्रीदिंग, ये जो ब्यूटी है, ये हमें ऐसा स्लीप प्रदान करती है दैट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ये हेल्थ और क्वाइट ब्रीदिंग प्रदान करने वाली ऑब्जेक्ट होते हैं। हर एक सुबह, एवरी मॉर्निंग, वी आर सराउंडेड बाय द ब्यूटी ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स विच बाइंड्स अस टू दिस अर्थ। जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, वही ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हमें इस दुनिया से बांध के रखते हैं। In the other words, we can say that this life is full of pain, suffering, and various other problems that we face. Due to these all problems, we start feeling fed up with the activities of the world. हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, हम उन मुश्किलों से परेशान होकर के ऊब जाते हैं इस जीवन से। लेकिन ब्यूटी किसी न किसी फॉर्म में हमारे सामने आती है। इट इज द ब्यूटी दैट कम्स in front of us. हर एक सुबह जीवन के नए नए फूल, जीवन के रंग बिरंगे फूल की रीडिंग हमारे सामने आती है और हम फिर से इस दुनिया से, इस धरती की एक्टिविटीज से जुड़ जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याएं, हमारी जितनी भी मुश्किलें हैं, उन सब को खत्म करने वाला अगर कुछ है तो वो है ब्यूटी। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट के साथ साथ ब्यूटीफुल आइडियाज, ब्यूटीफुल थॉट्स, प्लीजिंग थॉट्स, ये सब क्या है? ये सब किसी न किसी फॉर्म की ब्यूटी हैं और यही ब्यूटी हमको इस दुनिया से कनेक्ट करके रखती है। वी रिमेन कनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड विद दिस वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ब्यूटी। So in the last class we had done up to here. Let us proceed for today's class. Please open your book on page number 98. In the last class we had done up to this line, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Okay. Therefore on every morrow we be reading a flowery band to bind us to the earth. Yes. These beautiful thoughts and memories bind us to this earth. ये जो beautiful thoughts हैं, जो beautiful memories हैं, यही हमें इस दुनिया से, इस अर्थ से बांध के रखती है। Thus, with every passing day, on every morning, we prepare a wreath of flowers which strengthens our bond with earth. हर एक सुबह, हर एक दिन हम एक नए जीवन के प्रति या जीवन के प्रति एक नया एटीट्यूड, एक नया आइडिया, एक नई सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। वही है wreath of flowers. Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures
of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. So, here in these lines, poet wants to convey us that despair and disappointment are the integral features of life. So, we often suffer pain and loss of hope due to the absence of goodness and nobility. हमारे जीवन में, in our life, on one hand, if we meet good people, there are the bad ones as well. अगर हम जीवन में अच्छे लोगों से मिलते हैं तो जो बुरे लोग हैं वो भी जीवन में हमारे आसपास ही होते हैं. जहां पे अच्छाई है, ऑन वन हैंड वी रिसीव गुडनेस ऑफ द पीपल, एंड सो ऑन द अदर हैंड वी रिसीव the bad people also, and their impact, their activities influence us in bad way. जब गलत लोग मिलते हैं, खराब लोग मिलते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे जीवन के साथ, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो कंडक्ट है, वो हमें गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है. और उनके गलत कंडक्ट के कारण हम डिस्पेयर या डिसअपॉइंटमेंट में हमको मिलता है. वी रिसीव डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटेड एंड डिसअपॉइंटमेंट. और इन चीजों से क्या होता है, हम अक्सर पेन फील करते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, वी टर्न टू बी होपलेस, वी फील लॉस ऑफ होप. क्योंकि लोगों के अंदर से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बुरे होते हैं, उनके अंदर की जो गुडनेस है, जो नोबिलिटी है, वो खत्म हो गई. सेल्फिश एंड इनह्यूमन नेचर, लोगों का जो सेल्फिश और इनह्यूमन नेचर है, दैट मेक्स अस ग्लूमी and overshadows our happy thoughts. लोगों का जो इनह्यूमन नेचर है वो हमें ग्लूमी बनाता है और हमारे हैप्पी थॉट्स पे को ओवरशैडो कर देता है. डार्कन्स आवर वेज, हमारे रास्तों को अंधकारमय कर देता है. हम निराश हो जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता हम किधर जाएं. आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं होता. और ये सब क्यों होता है? Why this all happens? It happens just due to the activities of the people who possess inhuman nature. ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, अपने इनह्यूमन नेचर, अपने इनह्यूमन कंडक्ट से हमें गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं. हम निराश हो जाते हैं, हमें कोई तरीका नहीं मिलता हम किधर जाएं, हमारे रास्ते अंधकारमय हो जाते हैं. Man strives and struggles searching a way out of this darkness and gloom. हम एज ए ह्यूमन बीइंग स्ट्राइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि हमें इस ग्लूम से, इस डार्कनेस से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए. एंड इन स्पाइट ऑफ एक्सपीरियंसिंग सैडनेस एंड रिमोर्स, यद्यपि वी आर फुल ऑफ sadness, we are full of remorse. Despite of that, क्या होता है?
Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अगर गलत लोग मिलते हैं तो अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं। गलत लोगों की एक्टिविटीज के कारण अगर हम निराश हो गए हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, हम ऐसे प्लेस पे पहुंच गए हैं जहां से निकलने का रास्ता नहीं निकलता दिख रहा है, रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई आइडिया नहीं है, तो वहीं पे इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। और ऐसे अच्छे लोग हमारी लाइफ में आते हैं क्या बन के? ब्यूटीफुल, ब्यूटी के फॉर्म में। वही लोग ब्यूटीफुल होते हैं, उन्हीं को हम अथिंग ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। लोग या आइडियाज या थॉट्स हमारे रास्ते अगर अंधकारमय हैं तो उन अंधकारमय रास्तों से ही हमें कोई न कोई रे ऑफ होप दिखाई पड़ती है, हमें कोई रास्ता दिखाई पड़ता है और हम उससे बाहर निकलते हैं। तो वो जो रे ऑफ होप है, दैट रे ऑफ होप, वो आशा की किरण क्या है? दैट इज द ब्यूटी। वही सौंदर्य है, वही ब्यूटी है। और उसी ब्यूटी के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्यूटी, वी फाइंड आवर वे, वी फाइंड आवर हैप्पीनेस। और हम जो अभी तक डार्क और ग्लूमी सेल्फ में फंसे हुए थे, हमारी जो सैडनेस थी, वो सैडनेस खत्म होती है। That sadness comes to an end. वो जो दुख है, दर्द है, पेन है, सफरिंग है, निराशा है, that comes to an end. And that is due to the activities of some sort of beauty. और वो किसी न किसी फॉर्म में जो ब्यूटी है उसकी एक्टिविटी से करें। Such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a saddy bull for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make. Against the hot season, the mid-forest break, rich with sprinkling of fair musk rose blooms. What are these all? These all are some beautiful object. आप यहां देख सकते हैं कि जैसा कि ज्यादातर रोमांटिक पोएट्स में पाया गया, वो कहीं न कहीं से नेचर के वर्ष पर होते हैं। वैसे तो हमने पिछली क्लास में आपको डिस्क्राइब किया था कि वर्ड्सवर्थ जो है वो उन्हें पोएट ऑफ नेचर का नाम दिया गया, बट जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं, वो चाहे वर्ड्सवर्थ हो, चाहे कीट हो, चाहे बायरन हो, सब में आपको कहीं न कहीं से नेचर के प्रति जो लगाव है वो दिखाई पड़ेगा। नेचर की ब्यूटी को तो वो सिंग करेंगे, उसको वो प्रेज करेंगे, उसको एडमायर करेंगे। यू कैन सी ओवर हियर, जॉन कीट इज द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी एंड अल्टीमेटली ही कम्स टू द पॉइंट। पहला पॉइंट उन्होंने दिखाया कि ब्यूटीफुल अ थिंग ऑफ ब्यूटी में हमारे अच्छे विचार, हमारे अच्छे आइडियाज, हमारे प्लीजिंग थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स, हमारे अंदर की जो सकारात्मकता है
वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, और हमारे थॉट्स, हमारी आइडियाज, हमारी होप, हमारी पॉजिटिविटी, आफ्टर दिस ऑल पॉइंट ही गिव्स अ ह्यूज लिस्ट ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, और कहते हैं कि ये सब क्या है? These all are the beautiful things. ये सब beautiful things हैं. All the objects of beauty, the sun, the moon, the trees whether young or old, cast an enchanting spell and sprout as a shady boon even for the simple sea. जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सन हो, मून हो, पेड़, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, ये सब क्या करते हैं? दे ऑल कॉस्ट एंड इंचेंटिंग स्पेल. ये सब हमारे ऊपर इंचेंटिंग स्पेल, मैजिकल जादू करते हैं हमारी लाइफ में. यस, एंड स्प्राउट एज अ सैडी बून इवन फॉर सिंपल सी. जो छोटे पेड़ हैं वो क्या करते हैं? वो शैडी बून के रूप में स्प्राउट करते हैं सिंपल सीड के लिए, हर चीज के लिए, हर एक लिविंग, हर एक एनिमल के लिए. फर्दर फॉर सिंपल सीड एंड सच आर डैफोडिल्स. आगे वो फ्लावर की ब्यूटी के बारे में बात करते हैं. फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल. डैफोडिल्स, daffodil flower reminds us the poem of William Wordsworth. जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल फ्लावर को अच्छे से सिंग किया, उसको बहुत अच्छे से एडमायर किया. डैफोडिल्स, पोएट कहते हैं द ब्यूटी ऑफ द डैफोडिल्स ग्रोइंग इन पास्चर्स and meadows and the clear waters of river give a cooling and pleasant experience in contrast to the warmth and unpleasantness of the hot season. जो डैफोडिल्स की ब्यूटी है, और डैफोडिल्स के साथ साथ वो पूरा ग्रीन वर्ल्ड जिसमें डैफोडिल्स उगते हैं, सरवाइव करते हैं. Along with daffodils, the clear rills, rivers, जो कि खुद में क्या करते हैं? These, waters of the clear waters of the rivers give a cooling and pleasant experience. हमें cooling and pleasant experience देते हैं. When we all are suffering the hot season all around, it is the waters of the clear water, clear river, or the rivers of the clear water give us a cooling and pleasant experience, in contrast to the warmth and unpleasantness of the hot season. Further, the mid-forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Further, the poet talks about the magical spell of beauty in all objects of nature, and thus basks in the mystifying beauty of the thick forest underwood. पेड़ तो ठीक है, छोटे बड़े, जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक होते हैं, ब्रेक ठीक मास ऑफ फर्न्स, जो कि बड़े घने जंगलों की छाया में उनके नीचे उगते हैं, उनकी ब्यूटी को दिखाता है. Poet talks about the beauty of
musk rose, fair musk rose blooms. The blossoming of beauty is also sown in the musk rose. उनकी भी अपनी एक ब्यूटी है. नेक्स्ट, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बाद, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड. Meant the blossoming of beauty is also to be experienced in the grandeur of death of those mighty and powerful kings and knights who made supreme sacrifices and died noble deaths. जो ब्यूटी की ब्लॉसमिंग है वो इन्हीं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में ही नहीं, जो एंशियंट टाइम के, ओल्डन डेज के जो माइटी पीपल हुए हैं, पावरफुल किंग्स हुए हैं, नाइट्स हुए हैं, हु हैड मेड सुप्रीम सैक्रिफाइसेस, जिन्होंने बहुत कुछ, ढेर सारा सैक्रिफाइस किया है, और नोबल डेथ्स जिनकी हुई है, उनके भी ग्रैंड्यूर में ब्यूटी है. उनकी जो स्टोरीज हैं, ऑल ऑफ उनकी जो स्टोरीज हैं, उनकी जो कहानियां हैं, वो हम सबको इन दिस वे और दैट वे हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं, हमारा मोरल बूस्ट करती हैं, हमें कुछ अच्छा करने के लिए उत्साहित करती हैं. दे ऑल इंस्पायर अस टू बी गुड, टू बी माइटी, टू मेक एन एफर्ट टू बिकम पावरफुल as they were. And the last, all lovely tales that we have heard or read, वो सारी lovely tales जो हमने सुनी है या जो हमने पढ़ी है, वो सब क्या है? They all are an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heaven's brink. The tales of the spectacular and grand lives, जो कहानियां हैं spectacular and grand lives की, which we have heard or read, जिसको हमने सुना है, पढ़ा है, they are like perennial fountain. वो perennial fountain की तरह हैं, from where we draw the elixir of life, जहां से हम elixir of life ड्रॉ करते हैं. They are great source of inspiration, and being a great source of inspiration, they pour forth into us as the immortal drink received from the brink of heavens above. चूंकि वो इंस्पिरेशन के बहुत बड़े सोर्स हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए इमोर्टल ड्रिंक का काम करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि हेवन से हमें वो इमोर्टल ड्रिंक मिलता है, जो हमें इंस्पायर करता है. So in this way we have cleared the poem A Thing of Beauty. Please go through it very properly. We shall meet again in the next class with a new chapter. Till then, thank you. Have a nice day.